जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 560th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस। So today we are going to do some critical analysis because I think tomorrow is going to be a very great day for markets. So आइए जुड़ जाइए, let us start today's session. And before I proceed further, let me just remind you guys that the next training is scheduled on next weekend, which is May 7th and 8th. And if you are interested to learn from me, you can WhatsApp number दिया हुआ है description box में, and you can register for this training and you will be added in our Telegram group support for a period of 3 months. एंड चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो राइट नाउ S&P 500 इज अप बाय 1%, नैस्डैक इज अप बाय 2%, जर्मन डैक्स, सारे मार्केट्स जो है इस समय तेजी में, सारे मार्केट्स जो है इट्स ऑल ग्रीन एंड द ओनली थिंग विच इज रेड इज द ड्रॉप इन द विक्स। सो विक्स जो है ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, बाकी रेस्ट ऑल अदर इक्विटी इंडाइसेस दे आर ट्रेडिंग अप। So right now, there seems to be no problem whatsoever and everything is looking very nice. But क्या कल सुबह तक चीज़ें हालात जो है बदल जाएंगे, ये एक इंटरेस्टिंग विषय है। Now, let me just analyze the S&P 500 for you. So yesterday I said that this market has found a good support over here, but this is a sign that later on, maybe few days, maybe few weeks, but later on this market is going to crack in a very bigger manner. Now that may take few days or that may take maybe 1 week or so, but this is looking like a very plausible, a very probable, a very possible scenario. Okay, so I believe this was first wave, this is second, and we have started some sort of a larger correction in the US market. And if US market is about to do such sort of correction, then that will have a ramification on all the markets. Now already we have seen that the German markets, the French market, the European markets, they have already corrected quite a lot in the month of March, and more so because of the geopolitical tensions that were there due to Russia and Ukraine war. So the equity markets, they are going to remain uncertain, they are going to remain on the bearish side. Yes, for the time being they have found support and yes they can rally, but there is going to be problem. Okay, there is going to be problem. We are not uh, going to see rallies like this, which was the signature rallies of 2020 2021. I think the markets have made a long term top here and we are in for a bigger correction in times to come. So ये मेरा view है going forward, mid term to long term bearish on equity markets. Now let's have a look at the US डॉलर। सो US डॉलर अगेन इट्स लुकिंग लाइक कि हर दिन जो है 0.5% US डॉलर जो है ऊपर की तरफ जाता है। दैट इज समथिंग विच इज you know I have not seen in a long time. The last time I remember such vertical takeoff, such move started, that was in 2013. If I'm correct, it was somewhere around 2013 or 14. Let me just see last time. Yeah, it was here somewhere. Yeah, it was almost in 2014. So uh, barring that, I think it's been a long time since we have seen such a big rally in the US dollar. So US dollar is breaking the monthly resistance also, and it has retraced almost 88% of the previous decline from COVID high to the COVID bottom. सो लास्ट टाइम यूएस डॉलर जो है कोविड क्रैश के टाइम पे जो है यहाँ पे आया था, इतने हाइयर लेवल्स पे था, एंड दिस टाइम अगेन इट हैज़ कम. सो आई डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग टू स्टॉप बिकॉज इट सीम्स एब्सोल्युटली रिलेंटलेस. जनरली क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है 88%, दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्क्स. सो लेट अस सी, अगर यूएस डॉलर यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अगर ब्रेक लेता है, so that should help the equity markets also. But if US dollar continues to move up like this, I think there will come a time when the equities market are going to be uh, tear apart. So just a matter of time. Things are heating up. Things are becoming more complicated. So a few advice or few suggestions I would like to give for all the type of traders is that number one, uh, avoid leverage. Okay, avoid leverage.
or keep your leverage in check, which means keep your FNO positions in check. Okay, and keep very stable expectations. Okay, don't let the market drive you, because why I'm saying all this is because I can clearly see there will be some nasty moves in the coming months. These, the way these markets, the dollar moving up in such a fashion, the USD JPY moving up in such a fashion, this is telling me that overall the financial markets as a whole is going to undergo turmoil. टर्मोइल का मतलब ये है कि इट्स लुकिंग एज इफ सम सॉर्ट ऑफ वीडियो गेम इज रनिंग अप. ओके, सो इसीलिए ऐसी जब सिचुएशन होती है दोस्तों, तो बाजार जो है ना सडनली एक क्रैश करता है. ओके, सो बाजार में एक लेवरेज बिल्ड हो जाता है, बाजार में एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है, एंड व्हाट मार्केट डज इज अ सडन क्रैश. ओके, सो ये बिना किसी वार्निंग के आएगा, ये एकदम सडन स्विफ्ट शार्प होगा, एंड देन पीपल विल कीप फाइंडिंग रीजंस, और रीजंस मिलेगा नहीं. सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बी सेफ, लेवरेज को चेक में रखना, स्टॉप लॉसेस को अपने डिफाइन करके रखिए, पोर्टफोलियो वाइज भी एक डिफाइन करके रखिए, इंडिविजुअल स्टॉक वाइज डिफाइन करके रखिए, बिकॉज सूनर और लेटर दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन दी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है, नाउ US dollar is almost at the previous highs of March 2020, and on the other hand, the USD INR, it is not moving up. Now this is again, I have explained कि ये round 1 चालू है, RBI has won this round, but what if round 2 starts, तो इसमें RBI जो है ये नहीं डिफेंड कर पाएगा, and USD INR can start to spike up towards 82 levels, which nobody is talking about. Right now it is trading somewhere around 76 and a half. Okay, now I suspect that there will be a run up in the USD INR sometime in the next 6 months. Now that can start from tomorrow, that can take 3 months, 4 months, but in next 6 months I think there is going to be a run up, there is going to be attack on the USD INR towards nothing less than 82 rupees. Now what will be the trigger, I don't know. Maybe the geopolitical tensions will escalate, which I suspect they should escalate, because the US is not going to budge. The US is going to poke Ukraine. The US is going to supply Ukraine more weapons and all these things. So why is USA doing all these things? Because USA is actually uh, you know uh, this war is right now not between Russia and Ukraine. The war is indirectly between Russia and USA, right? So USA, what it is trying to do is it is trying to hide itself or mask itself behind the Ukraine, and it is trying to weaken the Russian economy, the Russian politics, and all these things, so that with passage of time Russia becomes weak and Russia starts to accept the defeat, etc. But I think it is not going to happen. I think the USA is going to face a lot of trouble, and Russia will definitely uh, uh, बॉम्ब यूएसए यानी कल मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रशिया क्यों यूएसए को बॉम्ब करेगा. बॉम्ब बहुत सारे तरीके से हो सकता है. बॉम्ब मतलब रियल बॉम्ब नहीं, साइबर अटैक हो सकता है, या रशिया जो है अपनी एक खुद की लॉबी बना के पूरे जो डॉलर ट्रेड है, पेट्रो डॉलर ट्रेड है, उसमें डिसरप्शन कर सकता है. लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. सो बेसिकली रशिया इज गोइंग टू गिव अ टफ टाइम टू यूएसए. नाउ ये जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू एस्केलेट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, विच मोस्ट पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग. This is definitely going to one fine morning you get up and you will see some really nasty news, use of some big weapon suddenly out of nowhere. So I think uh, the rally in the US dollar in the last 2 months, I think it is not more of not related to rate hike. I think again this is the फसाड. आई थिंक ये रेट हाइक की वजह से उतना नहीं है. आई थिंक सेफ हेवन बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर 3-4 महीने बाद ऐसी कोई भी एक कैटास्ट्रोफी होती है, तो इन दैट केस फंड्स जो है, हेज फंड्स जो है, दे वुड लाइक टू गो इनटू सेफ हेवन बाइंग, व्हिच इज नथिंग बट गोल्ड एंड द यूएस डॉलर इवन राइट नाउ. So I think अंडर द लाइट ऑफ दिस रेट हाइक सिनारियो कि यूएस फेड जो है रेट हाइक करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, आई थिंक इसके आड़ में जो है इन्होंने यूएस डॉलर को जो है सबसे पहले एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पे यूज किया है, बिकॉज दैट लुक्स वेरी नेचुरल.
एंड आई थिंक ये इसीलिए है क्योंकि ये सिनारियोज अनफोल्ड होने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स थिंक और लेट्स टेक यूरो यूएसडी। सो यूरो यूएसडी, ब्रिटिश पाउंड, ये सब एकदम वाटरफॉल डिक्लाइन में है क्योंकि इनका भी कोई गलती नहीं है। द वे यूएस डॉलर इज मूविंग अप, यू नो, ऑल दीज सपोर्ट लेवल्स विल बी ब्रोकन अपार्ट। सो यूरो अगेन आज डाउन है 0.5%। ब्रिटिश पाउंड ने 1.25 का भी लेवल ब्रीच किया है। अभी ब्रिटिश पाउंड एक एक और अपने क्रिटिकल सपोर्ट पे है। लेट अस सी कि अगले 2 दिन में क्या होता है, बट एवरी डे what is happening is they are breaking one by one support, like you know, the piece of cake. So हम थोड़े दिन में देखेंगे। वैसे मेरा जो एक्सपेक्टेशन है which is that the US dollar should peak out by 5th of May, and these currencies like the euro, the British pound, these currencies should form a bottom. They should form a critical bottom, okay, and then they should start to bounce. So अभी हम देखते हैं 1-2 दिनों में, 3 दिनों में, if we see this theme materializing, then definitely currencies में जो है आसान हो जाएगा वापस से ट्रेड करना। इंट्राडे रेंज काफ़ी बड़े हैं, सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग जो करेंसी है वो है यूएसडी जेपीवाई, बिकॉज इस करेंसी ने जो है आज 2% की छलांग लगाई है, विच इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, ये मैंने काफ़ी सालों के बाद देखा है, एंड दिस इज़ लाइक टू मच, लाइक ह्यूज मूव्स हैं। एंड प्रॉबली आई बिलीव 132 इज कमिंग, ये ऑलमोस्ट 131 है। सो आई थिंक कल सुबह तक शायद एक और डॉलर की स्पाइक लगाएगा 132.27। अब अगर यहाँ ये नहीं रुकता है देन आई थिंक ये जो है ना ग्लोबल मार्केट्स को क्रैश करने वाले हैं एनी डे, ओके, बिकॉज आई थिंक यहाँ तक कि फिर भी एक लिमिट है। दिस इज अगेन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, यहाँ तक जो है परमिसेबल लिमिट है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव है दोस्तों, इस तरीके से करेंसी की मूव्स नहीं होती हैं। दिस इज द वीकली चार्ट दैट आई एम रेफरिंग, एंड यू कैन सी, यू नो, you will find that in last so many years you have never seen such kind of a vertical takeoff. Even during the COVID crash it was a blip, right? बट ये कोई सेकुलर ट्रेड नहीं था, सेकुलर मूव नहीं था। इवन हियर देयर वाज अ सडन ब्लिप, बट कोई सेकुलर ट्रेड नहीं था जो इस समय है। सो ऑब्वियसली दिस मीन समथिंग। इसका जो है सिर्फ इन्फ्लेशन का कोई रीज़न नहीं है, इसका डेफिनेटली मल्टीपल रीजंस हैं। अभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये बाहर नहीं आ रहा है, इट विल कम। जनरली 3 महीने का एक लैग टाइम होता है, बट डेफिनेटली समथिंग इज कुकिंग अप। इसीलिए मैंने कहा कि लेवरेज पे ध्यान देना, बिकॉज लिक्विडेशन जब बाजार में शुरू होता है ना तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। और लिक्विडेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कोविड में क्रैश की शुरुआत हुई थी, निफ्टी ने लोअर सर्किट हिट कर दिया, राइट? लकीली पीपल गॉट सेव बिकॉज एवरीथिंग बाउंस्ड बैक वेरी सून इन जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। उसके पहले लिक्विडेशन की एक एग्जाम्पल थी 2008 के क्रैश में, जब कई महीनों तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे क्रैश करता गया, राइट? सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। 2008 को हुए हुए भी आई थिंक अभी 14 साल कुछ होने को आ रहा है, एंड आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ सिचुएशन लाइक 2008, ठीक है? हो सकता है थोड़ा समय लगे इस चीज़ को अनफोल्ड होने में, बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग लाइक अ 2008 सिनेरियो, ओके। नाउ let's talk about our currency futures. तो USD INR again RBI is like intervening too much, तो यहाँ पे जो है 77 के लेवल को इसे क्रॉस ही नहीं करने दिया जा रहा है। लेट मी जस्ट डिस्कस विथ यू द USD INR। इसका भी चार्ट मैंने काफ़ी दिन से दिखाया नहीं आपको, एक बार मैं इसके चार्ट के ऊपर जो है अपनी कमेंट्री रख देता हूँ कि क्यों USD INR में जो है ना एक US डॉलर जैसा एक टेक ऑफ मूव होने की संभावना है। ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट है आपके USD INR का, ठीक है? USD INR करेंसी क्राइसिस लास्ट टाइम हुआ था 2013 में, एंड यू कैन सी दी मूव। ये जो मूव आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 55 रुपीज से ये चला गया ऑलमोस्ट 70 रुपीज इन अ मैटर ऑफ 2 months, एंड दिस वाज अ करेंसी क्राइसिस। इफ यू रिमेंबर, Manmohan Singh was the prime minister that time, and as usual he was silent throughout this rally, and then they brought Raghuram Rajan, and then they started to fight against this, and this was a very huge rally, a very larger rally. Now let me tell you कि इस समय दोस्तों हुआ क्या था। इस समय यहाँ पे एक तो ग्लोबल मार्केट्स में जो है थोड़ी सी क्राइसिस का एक बैकड्रॉप था, लाइक 2012 में
रियल एस्टेट क्राइसिस हुआ था गल्फ के मार्केट में, एंड देन थोड़ा टेपर टेंट्रम का भी एक इफेक्ट था। यानी इस समय जो यूएस डॉलर जो भाग रहा है बिकॉज ऑफ द रेट हाइक, बोल के कि रेट हाइक की वजह से है, तो इस समय भी वही सिचुएशन था। एंड एज यू कैन सी इट टुक सम टाइम टू कंसोलिडेट, एंड देन जब ये फटा तो बहुत ही बुरी तरीके से इसमें एक्सप्लोजन हुआ, राइट। और यहाँ पे इफ़ यू सी, अगर आप इसे थोड़ा सा लंबे अवधि के एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है पिछले लगभग एक साल से। इफ यू सी ये 2021 की शुरुआत है, वी आर राइट नाउ हियर ऑलमोस्ट मे 2022। इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज कॉइलिंग। तो जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि प्राइस कॉइल जब करता है एक लंबी अवधि में, तो व्हाट हैपेंस इज कि द मोमेंट इट गेट्स अ चांस, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 14-15 मंथ्स का ये एक कंप्रेशन है। ओके, सो जैसे यहाँ पे एक कंप्रेशन था ऑलमोस्ट एक 1 ईयर का, इट वाज इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट वाज इन अ ट्रायंगुलर फॉर्मेट, एंड देन इट एक्सप्लोडेड। राइट नाउ इट्स इन अ रनिंग चैनल सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मेट। और तो हम अगर इन पूरे स्ट्रक्चर्स को मिलाएंगे, जैसे यहाँ से इन पूरे स्ट्रक्चर्स को अगर कंबाइन करते हैं, तो what is most likely to happen is the moment we start to take off this 77 rupees level, 77, 77.25, there can be a vertical rally like this, which should terminate nothing less than this channel resistance, करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाले चैनल पे तो हम नहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली वो तो फिर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इंडिया अब एक मैच्योर्ड कंट्री है तो उतना नहीं होगा, बट ये जो टॉप्स बने हैं यहाँ पे, एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट दैट टू बी टेस्टेड गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएस डॉलर। अब अगर आप देखें कि ये लेवल कहाँ तक आता है, अगर हम इसको जूम आउट करके देखें, तो दिस लेवल, as I said, this level comes more than 82। मैंने इस ट्रेंड लाइन, इस डॉटेड ट्रेंड लाइन को पकड़ा है तो लगभग 82 मुझे दिख रहा है, बट इफ यू एक्चुअली कंसीडर देन इट इज ऑलमोस्ट 85, 86, because with passage of time the upper coordinates will also change, right। तो ये मूव क्यों होगी, यानी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसे हम पहले से एंटिसिपेट करते हैं। जैसे ये मूव क्यों हुआ, बिकॉज एट दैट टाइम क्रूड ऑयल वाज ट्रेडिंग मच हायर, इट वाज $125। तो एक क्रूड का इशू था, क्रूड के इशू के वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया था, प्लस हमारे बैंकिंग सिस्टम में लॉट ऑफ एनपीएस थे, राइट। मनमोहन सरकार जो थी पूरा सबको लोन देके इन्होंने वो कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया था, राइट। एंड देर वॉज लॉट ऑफ डॉलर डेट ऑल्सो, यानी इंडिया की जो मिड कैप कंपनीज थी इनके पास बहुत ज्यादा जो है डॉलर डेट भी था। ओके, सो देर वर मेनी रीजंस, प्लस ग्लोबल यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ था, रेट हाइक, टेपर टेंट्रम था, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब काफी सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये हुआ, राइट। तो अगर यहाँ पे ये 2-4 हफ्तों की बात है, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ, इफ यू सी, अगर ये चीज़ ऐसे होता है तो यहाँ पे भी तो कुछ रीजंस होंगे जो इन्हीं में से आएंगे। सो कैन क्रूड ऑयल गो टूवर्ड्स 180 to $200? ओके, ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे अभी रिजर्व्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, एनपीएस वगैरह आई डोंट थिंक ये इतना कोई इशू इस समय है। हालांकि द फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग मिस्टर के वी कामत हैज सेड दैट कि अभी सबसे बेस्ट बुक्स हैं। जब कोई बंदा बोलता है फाइनेंशियल मार्केट में कि हालत बेस्ट है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मे बी इफ नॉट एनपीए देन मे बी इज एनी कंपनी गोइंग टू डू अ स्कैंडल, ठीक है, या कोई डिफॉल्ट है, कुछ लफड़ा है, यस बैंक डीएचएफएल टाइप का, ठीक है। और दूसरा है कि अगर डॉलर रिलेंटलेस रहा तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रबल, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है बहुत हैवी डॉलर डेट पे बैठी हुई है, स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी, सो दैट माइट अगेन ब्रिंग ट्रबल। सो ये एक मैक्रो पे ये मैं इसलिए पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ क्योंकि इससे कल कुछ नहीं होगा, परसों कुछ नहीं होगा, अगले हफ्ते कुछ नहीं होगा, बट आने वाले 2-3 महीनों में अगर ये सिचुएशन होता है तो जस्ट रिकॉल यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन आवर चैनल, ठीक है। और इस समय ये जब मूव होगा तो डेफिनेटली इक्विटीज मार्केट में जो है बहुत बड़ी ट्रबल जो है वो आएगी, ठीक है। सो लेट अस सी, ये एक 3 महीने की पर्सपेक्टिव को हम लेके चलते हैं एंड वी विल प्ले वन डे एट अ टाइम। सो लेट अस हैव अ लुक एट द योर
व्हाट कमोडिटीज में क्रूड ऑयल और यूएस डॉलर दोनों ही आज जो है काफ़ी ऊपर है. सो आई थिंक दैट विल बी सम प्रॉब्लम फॉर आवर मार्केट फॉर टुमारो सेशन. इस समय लग नहीं रहा है कि कल बाजार गिरेगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर कल इंडियन मार्केट में हैवी डिक्लाइन हो जाए. ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों उसके चांसेस है. सो right now the your crude oil is up, trading at 8000 level, and 8000 से लेके 8150, that is a resistance level. So if you are long, do watch out. I think यहाँ पे जो है you should book some profits. 8000 से 8150, that is a resistance as of now. यहाँ पे एक trend line resistance भी है. So if you are long, you should definitely टेक आउट सम प्रॉफिट्स. हम देख रहे हैं कि 8000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है. लास्ट टाइम सिर्फ एक दिन इसके ऊपर गया था, राइट. सो वी आर अगेन एट दोज रेजिस्टेंस. अगर आपके हाथ में प्रॉफिट है तो इसे डेफिनेटली बुक करिए या ट्रेल टू कॉस्ट वगैरह करिए. नेचुरल गैस 540 पे, नेचुरल गैस में 5% की लगभग डिक्लाइन आ चुकी है. सो कमोडिटीज़ में इस समय मैं ज़रा बैकफुट पे हूँ, बिकॉज मुझे कोई खास ट्रेड सेटअप दिख नहीं रहे. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द इक्विटी मार्केट्स. सो दैट्स ऑल ऑन द कमोडिटीज फ्रंट. बाकी क्रिप्टो मार्केट में भी अभी तो कुछ नहीं है, बट येस, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर एक्सपेक्टिंग सम वेरी वेरी बिग मूव इन द क्रिप्टो मार्केट्स. वी विल सी ऑन संडे. सैटरडे संडे जो है इसमें गेम होगा, तो हम उस समय इसको रिव्यू करेंगे. चलिए अब सीधे आते हैं निफ्टी पे. लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एंड देन वी विल टेक द स्टॉक वेरी. सो आज हुआ क्या बाजार में? बाजार जो है आज गैप अप करता है. ठीक है, मार्केट ओपन विद अ गैप अप. नाउ आफ्टर द गैप अप ओपनिंग it started to go sideways, and I thought that maybe क्या पता आज भी you know pathetic price action हो, जैसे हर रोज हो रहा है कि gap up या gap down and then rest of the day nothing happens. Then something interesting happened. It started to come near the shorting level, जो trend line resistance था हमारा. Okay, but यहाँ पे कोई weakness नहीं था, and there was this unfilled gap. So one thing was very sure कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो तो फिर आप मूर्ख हो. क्यों? क्योंकि ये जो आज का ओपनिंग हाई है प्लस ये जो पेंडिंग गैप है, मार्केट इसको डेफिनेटली जाके टेस्ट करेगा. मार्केट अगर इसको जाके टेस्ट करेगा तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो ब्रीच हो जाएगा. करेक्ट. अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रीच हो गया तो मार्केट डेफिनेटली और ऊपर जाएगा. और कल जो आपको मैंने एक हायर लेवल्स बताया था शॉर्टिंग के लिए, 17,275 से 17,320, जहां तक एक एक्सपेक्टेशन, मार्केट वेंट ओवर देयर. यहाँ पे जो है मैंने एक शॉर्ट कॉल दिया. आई थिंक यहाँ नहीं, मैंने शायद यहाँ दिया 250 पे दिया. यस, इट वेंट टिल 300 एंड देन देयर वाज अ सडन ड्रॉप, राइट. ये एक सडन ड्रॉप था. सो हमने जो है पुट ऑप्शन के थ्रू ही इसे ट्रेड किया है. बैंक निफ्टी में भी हम जो है ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस बाय करके गए हैं आज बिफोर क्लोजिंग. नाउ विद सच अ प्राइस एक्शन, क्या मार्केट बुलिश हो चुका है? वैसे कुछ लोग जो हैं इस समय काफ़ी बुलिश हो चुके हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लोग बुलिश हो चुके हैं. रीज़न बीइंग देयर आर टू रीजंस. नंबर वन, एफआईआई ने आज बाय किया है. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. एफआईआई जिस दिन बाय करता है, ठीक है, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, यानी विद इन 24 आवर्स मार्केट गिर जाता है. ये आजकल का ऐसा ट्रेंड है. ठीक है, सो इफ यू सी एफआईआई बाइंग फिगर जस्ट फॉर वन डे, don't become happy, because that is a time that that market is going to drop. So we have got one good reversal in the form of breach of this trend line. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है. ये एक अच्छी बात है कि मार्केट इज प्रोबेबली रिवर्सिंग दिस. बट रिमेंबर वन थिंग, ट्रेंड रिवर्सल जो होता है दोस्तों, ये प्राइस पिवॉट के बेस पे होता है. करेक्ट. नाउ सपोज दिस इज हायर हाई हायर लोज, राइट. दिस इज हायर हाई हायर लोज, एंड विद इन दिस वन सेगमेंट, अगर मार्केट इस सेगमेंट में, यहाँ पे मार्केट अगर ऐसे ऐसे चल रहा था और ये एक माइनर ब्रीच किया है, बट इट डजंट क्रॉसेस अप, देन इट विल फॉल विद अ ग्रेटर इंटेंसिटी. तो यहाँ पे जो आखिरी जो प्राइस पिवॉट है वो ये लेवल है, लगभग 17,400 के आसपास है, 17,450 के आसपास है, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था. सो दिस इज अ फर्स्ट साइन दैट यस, प्रोबेबली मार्केट हैज रिवर्स, प्रोबेबली. ठीक है, but what will be a surety, what will be a confirmation to this once we start to take out this high? क्यों? क्योंकि ये जो हमारा प्राइस पिवॉट स्ट्रक्चर है, ये कुछ यहाँ से बना है इस तरीके से. ठीक है, तो हमें इसको क्रॉस करना भी एक ऑब्लिगेशन है. ओनली देन वी कैन से दैट वी हैव some sort of bottom here, and probably we are again going to that 17,000
770 एंड ऑल दोज लेवल्स, ठीक है। सो इस समय ये क्लियर नहीं है। इस समय आई स्टिल थिंक कि मार्केट जो है ना, प्रॉब्ली इट इज मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप एंड देयर इज अ वेरी ग्रेट चांस दैट इट विल अगेन ड्रॉप। ओके, नाउ इसलिए ये मैं पुट ऑप्शन में लेके गया हूँ क्योंकि रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, और ऐसे ही टाइम पे जो है एक सडन क्रैक ये मार्केट देता है, ठीक है। सो निफ्टी पे अब कल क्या करेंगे हम, लेट अस डिस्कस दैट ऑल्सो। आज के हाई पे this level of 17,327, that is a very critical level, and as you can see, every time this level has created lot of problem. Even here lot of problem was created, even you can see on the left hand side. So ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है 17,325 320 का। दूसरी बात ये है कि द 21 डे मूविंग एवरेज एंड 65 डे मूविंग एवरेज बोथ हैव कन्वर्ज्ड and market intraday went above those levels but managed to come and close below that level. So that is also a sign that market is still probably making, you know, a triangle like this. It is creating a, you know, deception over here, that it has given a breakout from this channel. I think it will morph into this, which will be sort of the first, then this sort of the सेकेंड एंड देन इट विल कैपिचुलेट, ठीक है। सो लेट अस सी, कैपिचुलेशन हो सकता है, अगर नहीं हुआ, ग्लोबल मार्केट जो है बॉटम आउट करके भागने लगे तो ठीक है, तो प्रॉब्ली इट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बॉटम लाइक दिस एंड देन इट कैन अगेन गो वेरी वेल टुवर्ड्स दैट सेम 18,000 लेवल बाय मिड में, ठीक है। सो लेट अस सी, मेरा बेट ये है कि आई थिंक अगर कल कोई बड़ा गैप अप नहीं हुआ तो वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ ड्रॉप, वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ ड्रॉप अगेन टुवर्ड्स 17,000 16,900 16,800। अगर ये स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हो गया तो फिर आई थिंक देर इज clear cut chance for a 16,624, which is precisely the target that I'm looking for this entire correction. So this is your one, this is two, this is थर्ड तो नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ ए बी सी टाइप आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी कल के लिए लेवल्स क्या होंगे और सिचुएशन क्या होगा। तो लेवल बहुत ही क्लियर है, जब तक आज का हाई क्रॉस नहीं होता है वी वुड लाइक टू फेड दिस मार्केट, ठीक है। सो आज का जो लेवल है 17,300 320, दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस, और जब तक ये क्रॉस नहीं होता है हम जो है इस मार्केट में बेरिश रहेंगे। एंड हमारा पहला टारगेट होगा आज का गैप फिलिंग विच इज 17,040। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 16,929, एंड तीसरा जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 16,800 और उसके नीचे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो सेशन ऑन निफ्टी स्पॉट इज 17,325, which is almost today's high, and below that our first target is 17,060 17,060 17,050। सेकेंड टारगेट है 16,920 और तीसरा जो टारगेट है 16,800 एंड उसके नीचे है। अगर कैपिचुलेशन हुआ तो सीधे 16,624। नाउ सिनारियोज देखते हैं, अगर कल आज के ऊपर गैप अप होता है, आज के हाई के ऊपर गैप अप होता है, सबसे पहले शॉर्ट को कट कर देना, ठीक है। पुट ऑप्शन शॉर्ट जो भी है इसको निकाल देना, हार्डली बहुत ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होगा। ओके, नाउ व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज it will definitely try to trigger on the higher side and try to reach this 17,470 level। okay, ये कोशिश करेगा कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे जाने का, ठीक है। एंड देर इज अ पेंडिंग गैप, देर इज अ पेंडिंग गैप एट 17,412। तो अगर गैप अप करता है तो एटलीस्ट इट विल फुलफिल दिस ऑप्शन ऑफ फिलिंग द गैप, तो शॉर्ट कैरी करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सो जस्ट वॉच फॉर 5 मिनट कैंडल। जैसे कभी कभार क्या होता है कि यू नो द 5 मिनट कैंडल लुक्स लाइक दिस and then it starts to drop, so just watch for 5 minute candle, okay, and then just exit the short। now second situation कि अगर ये नीचे ही खुलता है, फ्लैटिश ही खुलता है, तो शॉर्ट्स को होल्ड करना है। इनफैक्ट फिर मॉब लेवल के रेफरेंस से जो है आप फ्रेश शॉर्टिंग भी कर सकते हो। अगर कल गैप डाउन खुलता है देन सबसे बेस्ट है, बिकॉज इन दैट केस इट मीन्स कि आज का सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव था एंड मार्केट हैज अगेन डिसाइडेड टू go down, and all our targets should be met at least till 16,800 level, ठीक है। So I think that's all on Nifty। Let's go towards the Bank Nifty part। So Bank Nifty, आई थिंक बैंक निफ्टी में हमने जो है बहुत ही सही लेवल पे जो है इसको पुट ऑप्शन बाय किया है, बिकॉज पर्पसली आई वाज वेटिंग फॉर बैंक निफ्टी टू फिल दिस गैप।
So see, today it opened exactly नियर 36,070 लेवल. आज का जो मॉब लेवल था 35,936, जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, द मॉब लेवल वाज वेरी क्रूशियल. एंड कल मैंने एक्चुअली यही बताया था कि ये मॉब लेवल पे आप लॉन्ग कर सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस है, एंड गो फॉर दिस गैप फिलिंग होगा और फिर हमें जो है निकल जाना है या फिर शॉर्ट की कोशिश करनी है. तो वी हैव शॉर्टेड हियर, एग्जैक्टली हियर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है गैप फिलिंग पे हमने जो इसको शॉर्ट किया. नाउ इफ बेयर्स आर इन कंट्रोल, टुमारो इट शुड ओपन गैप डाउन. अगर गैप अप खुलता है तो सेम वही चीज करेंगे, शॉर्ट को एग्जिट करना है, एंड देन लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. ठीक है. तो एक बार डेली चार्ट को रेफर कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या है. सी, डेली चार्ट में प्राइस हैज कम आउट, फ्रॉम द declining pitchfork. So basically I was looking at this slope, ठीक है, and price has managed to pop out, price बाहर आ चुका है. ओके, सो ऐसे सिचुएशन में दो चीजें होती है. इफ यू कम आउट ऑफ द pitchfork, that is a sign of a trend change. Okay, but there has to be a breakout from the price resistance, जो कि अभी तक नहीं है. जो कहाँ पे होगा? 36,600, 36,700 के ऊपर होगा. ओके. दूसरी बात कि इफ यू कम आउट ऑफ रेजिस्टेंस लाइन and you don't give a follow through, what will happen is you will be sold off very badly. तो यहाँ पे दोस्तों सिचुएशन ये है कि अब बैंक निफ्टी अपने जाल में फंस चुका है. अगर बैंक निफ्टी में ताकत है तो बैंक निफ्टी को 36,700 का आंकड़ा कल कैसे भी इसे क्रॉस करना है. फेलियर टू डू सो विल इनवाइट अ सेल ऑफ. फर्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 35,250 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 34,250. राइट. सो दिस कैंडल, दिस पॉपिंग आउट will be considered as a sort of a breakout failure in terms of this downtrending slope. ठीक है. तो कल का हमारा मॉब लेवल क्या होगा, ये पिक्चर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 36,700 के ऊपर ही बैंक निफ्टी जो है बुलिश होगा. अनेबल टू क्रॉस दैट विल ब्रिंग अगेन द सेलर्स, एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 35,250 एंड देन 34,250 पोजिशनली. अच्छा, एक और बात, कल फ्राइडे है, सो वीकली क्लोजिंग भी होगी. अगर मार्केट्स ऊपर के लेवल पे क्लोज हो रहा है तो प्लीज कोई शॉर्ट कैरी करके मत जाना, बिकॉज एज आई सेड कि नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पिवोटल वीक फॉर दिस एंटायर क्वार्टर ऑफ अप्रैल टू जून. ठीक है. अब देखते हैं कि कल के लेवल्स क्या हो जाएंगे इंट्राडे बैंक निफ्टी पे, एंड देन वी कैन टेक द स्टॉक क्वेरीज. So from an intraday perspective, this today's high, or you can say 36,600, ये जो है हमारा एक मॉब लेवल हो जाएगा. राइट. दिस इज अवर ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल. टिल वी आर नॉट क्रॉसिंग दिस 36,550, 36,600, जब तक ये पूरा जो एक स्लैब है, ठीक है, ये जो 100-150 पॉइंट का स्लैब है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है, यू कैन चूज टू रिमेन बेरिश, यू कैन शॉर्ट एंड कीप दिस 36,867, ठीक है, 36,850, 36,900 एज अ स्टॉप लॉस एंड फॉर द लोअर टारगेट्स. ठीक है. सो आई विल जस्ट मेंशन इट हियर. मॉब लेवल इज 36,600, 700 slab, and first target on the lower side is today's mob level, which is 35,900. second target is 35,250. I don't think कल 35,000 के नीचे जाएगा, but if it goes then 34,250 तक सारे ऑप्शंस जो है ओपन है. ऑन दी हायर साइड, अगर कल हम इस ट्रिपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गैप अप खुलते हैं बट 36,750 वगैरह को नहीं क्रॉस करते हैं, वॉच आउट फॉर ट्रबल. अगर कमजोरी आती है, वीवैप के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो ही शॉर्ट करना इन केस ऑफ अ गैप अप. ओके, व्हाई? बिकॉज वी हैव अनफिल्ड गैप टिल हियर. तो अगर मार्केट डिसाइड्स टू गो अप, इट कैन क्रॉस 37 और इट कैन रीच टिल 37,400. ठीक है. सो बहुत इंटरेस्टिंग डे है कल का. लेट अस सी how things pan out. We have gone with put options and I'm quite confident about that. ठीक है. चलिए अब देखते हैं कि स्टॉक्स पे अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, so we can take stocks and then we can wind up the session. ओके, लेट मी रिमाइंड यू गाइज वंस अगेन कि दोस्तों अगली जो ट्रेनिंग है, आखिरी जो ट्रेनिंग है, विच इज़ ऑन May 7th and 8th, which is next weekend, and you can register for this training. Sunday will be the last day to join in, and
in future there will be no live session, so all those who are part of the Telegram group, the student community group, only they will have access. चलिए कुछ क्वेरीज हैं तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। इस समय मेरे सामने एक क्वेरी आ रही है, एच ए एल अच्छा स्टॉक था, इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट भी कराया था अभी 2 महीने पहले की बात है, व्हेन इट वाज कंसोलिडेटिंग हियर, राइट। सो आई थिंक दिस हैज मेट ऑल द टारगेट, 1745 का टारगेट था, ठीक है, पिछले करेक्शन का 261%। सो ऑल टारगेट्स आर डन, मेरे जितने टारगेट्स हैं दोस्त हो चुका है, इसमें से प्रॉफिट बुकिंग हमें करना चाहिए। मैंने 1310 1320 मैंने इस स्लैब में जो इसे बाय करवाया था, इस स्लैब में बाय कराया था विद 200 डे मूविंग एवरेज एज अ स्टॉप लॉस, एंड टारगेट जो था इसका रेंज ब्रेकआउट था। रेंज ब्रेकआउट आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डन। So that's about HAL. Reliance has hit 2840. Start doing the profit booking. Profit booking की सलाह मैं पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो रिलायंस में हमारा टारगेट मीट हो चुका है, स्टिल और थोड़ा जा सकता है, 29 10 29 20 भी, बट आई थिंक यहाँ पे बी केयरफुल, ट्रेल कर सकते हैं आप, बट आई थिंक बी केयरफुल, मैं सजेस्ट करूंगा कि निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करो। रिलायंस में अभी 3200 की भी चाल बाकी है, वो भी आएगा, करेक्शन आने तो वापस बाय करेंगे, वापस प्ले करेंगे 600-700 पॉइंट्स के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, सी एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट अल्ट्राटेक सीमेंट, मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है। सी यहाँ पे एक सपोर्ट है, बोलिंजर बैंड है, प्राइस पिवॉट है, ठीक है, 6500 पे सपोर्ट है, बट कुछ ग्रेट कोई ट्रेड नहीं है। मान लीजिए फिर भी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आप जो है 6400 के नीचे या 6400 का स्टॉप लॉस बस रखिए, आई थिंक दैट इज इनफ। And if it bounces it will go till 6850 6900, over there you can book the profits, ठीक है। So it's like this, stop loss please maintain करके चलना। इन्फोसिस इज बेरिश, इन्फोसिस आज ऊपर गया तो सब लोग बुलिश हो जाएंगे, इन्फोसिस वगैरह पे तो हम पता नहीं कितने महीने से बेरिश है, ठीक है, राइट फ्रॉम द टॉप। सो कोई चेंज नहीं है व्यू का, ठीक है, कोई भी बाउंस आएगा इट विल बी लिमिटेड टिल 1660 विच इज द लास्ट सपोर्ट। सो इफ यू आर स्टक, यूटिलाइज एनी टेक्निकल मूव दैट कम्स टू एग्जिट द स्टॉक। नवीन फ्लोराइन लेते हैं, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल, दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी। स्टॉक बहुत ही चॉपी है, साइडवेज है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या फ्रेश ट्रेड रिकमेंड करूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं रिकमेंड कर सकता। if it comes at 3650 probably then I will suggest a buy trade. Right now I can't recommend. Suppose if you are long, then you have no other option to trail to your cost, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे it's all 50-50, it can go 4300, it can fall back to 3600, so there is nothing as of now. नेक्स्ट है हिंडाल्को पे फ्रेश बाइंग करने के लिए। हिंडाल्को की तो धज्जियां उड़ गई हैं और मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पे जो है वार्निंग दी थी, टॉप से लेके 550 के लेवल पे, जहां पे काफ़ी लोगों ने बाइंग भी की है, ठीक है। नाउ हिंडाल्को ने पूरी जर्नी जो है यहाँ से ब्रेकआउट की थी अराउंड 470, इफ यू रिमेंबर, राइट, फ्रॉम 470 टू 640 हिंडाल्को जो है भागा था लास्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक। नाउ इट हैज कम बैक अगेन, सो दिस एरिया of say 470 465, it's a very nice area actually for a technical move। 233 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे है, प्राइस पिवॉट जोन है, बहुत ही बढ़िया लेवल है। तो मैं समझता हूँ 488 का प्राइस है, अगर हिंडाल्को हमें 470 पे यहाँ पे मिला, ठीक है, 470 पे अगर मिला, 465 पे यहाँ मिला, तो हिंडाल्को यहाँ पे कैश में बाय करना चाहिए 444 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी लगभग 30 रुपए का रिस्क होगा। एंड इसका टारगेट जो होगा इस ट्रेड का 560 रुपया होगा, ठीक है। सो यू कैन सी बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ये ट्रेड सेटअप है। और हिंडाल्को मैं बता दूं कि पीक आउट हो चुका है यहाँ में, केवल क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, रिस्क काफ़ी स्वीट है, रिवॉर्ड भी काफ़ी स्वीट है, तो इसलिए टेक्निकल ट्रेड है, दैट्स इट, ठीक है। सो कैश में ही करें, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, हिंडाल्को हो चुका है, इन्फोसिस हो चुका, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ओके। And now 2 days back I took this stock and I said कि it's a very tricky counter, because when it starts to move up
it moves very fast. When it starts to fall, it moves very fast. So see the tricky thing. Yesterday it gave a breakout, everybody became very bullish. Today again it has been sold off. So this is the problem with this stock. Now मैंने क्या सजेस्ट किया था, मैंने सजेस्ट किया था कि कोई भी मूव आए in the zone of 2250, you should exit your long trade, allow the stock some time, and then later on we can take some trade. So अगर आपने इसे फॉलो किया होता तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया होता. कुछ नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे एज ऑफ नाउ. डाबर, डाबर इंडिया लिमिटेड. सी डाबर एफएमसीजी प्ले है. फाइनली डाबर इज गिविंग दिस ब्रेकआउट विच लुक्स नाइस, बट आई एम स्टिल वेरी डाउटफुल. ओके, ठीक है. नेवरदलेस डाबर का रेजिस्टेंस कहाँ है? 590 पे रेजिस्टेंस है. सो 590 you should book out. Okay, you should book out. I think it's it's not going to cross 590. Very very difficult in the first round. It will go 590, but again it will become choppy. Probably, negotiate with this area which was acting as a resistance, probably convert it into support, and then probably if it starts to bounce, it will become a very fantastic trade setup in that case. So as of now 580 590 बुक आउट, ये मेरी सलाह होगी. एशियन पेंट कल मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एक बार कल का वीडियो आप देखिए, उसमें पूरी ड्राइंग करके मैंने जो है काफ़ी इसको एक्सप्लेन किया है. सो ठीक है. सो आई हैड सेड एशियन पेंट में से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज दिस वाज सिटिंग एट रेजिस्टेंस. नाउ टुडे it has done otherwise. Today it has gone up. So suppose if you have booked out, then also it's fine. Suppose if you are holding, then I would suggest you be careful. You try to either, you can trail, or these are all resistances 3290 3280. You can book over there also. Vinyl India, next query. Vinyl Chemicals, I hope this is the correct stock. Vinyl Chemicals, right? Okay. Now see this stock trading at 282. I would suggest you simply trail this stock to 230 rupees. Okay, and allow some time. इसको एक दो महीना टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा लगभग 380 के भाव पे. ओके, आई फील इट्स वेरी नाइस स्ट्रक्चरिंग. ठीक है, एंड इट्स देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन हियर, एंड द 200 डे मूविंग एवरेज इज वेरी नाइस. बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है. ऐसे स्टॉक पे पैसा बेट लगाने लायक है. सो आप जो है 230 पे ट्रेल कीजिए, और ये स्टॉक 380 जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना. यहाँ पे आके कमेंट भी ज़रूर करना. ठीक है. JSW स्टील लेते हैं, फटाफट थोड़ा लेते हैं दोस्तों. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. JSW स्टील, टाटा स्टील, ऑल दीज काउंटर्स, दे हैव नॉट परफॉर्म मच इन अप्रैल. न्यू सीरीज अभी शुरू हो रही है. सी JSW स्टील पे हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर ये स्टॉक नीचे मिलेगा तो कैश में बाय करेंगे. ओके, दैट वाज अ व्यू. नाउ right now what I would suggest is wait for some time. Okay, wait for some time. Why? Because I think ये स्टॉक है ना, हमें 685 पे भी मिलेगा. ऐसा मुझे लगता है कि ये स्टॉक 685 पे मिलेगा. सो फ्रेश ट्रेड के लिए मैं समझता हूँ थोड़ा वेट करेंगे. अगर आपने सपोज यहाँ कहीं भी बाय कर लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके इसमें से एग्जिट करना है. हिंडाल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा. देयर वाज वन क्वेरी. केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, हिंडाल को आई हैव टेकन. केपीआईटी, अच्छा केपीआईटी आई एक्सप्लेन यस्टरडे. क्या मैंने कहा था केपीआईटी में? निकल जाओ. करेक्ट. वाइड रेंज बार, हाई वॉल्यूम, निकल जाओ. सो जस्ट एग्जिट. Yesterday I have explained, quite a detailed manner uh, about this talk. Just refer to that part of the live session. Next query is Jubilant Food Works. So Jubilant Food Works doing nothing as of now. Any move that comes should be limited to 600 rupees or 585. It's a complete downtrending stock.
एंड या सो नो ट्रेड फ्रॉम माय साइड. अगर आप लॉन्ग है तो प्लीज यूज स्टॉप लॉस. It's a bearish counter basically. Any move that comes will be limited to 600 rupees. I don't think it is going to cross that. Jindal Steel. Okay, let me check Jindal Steel. JSW हो गया है. Jindal Steel and Power. Jindal Steel and Power. Okay. सी जिंदल में भी वेट करेंगे. जिंदल में भी वेट करेंगे क्योंकि ये एटलीस्ट 500 के लेवल पे एक बार आएगा. सो वी शुड वेट. वी शुड वेट. ओके. ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, आई वांट दैट टू कम हियर. ओके. सो जिंदल में लेट मी जस्ट ओके सी जिंदल में if this happens, जिंदल में if this thing happens, if we get at 485 487 here, okay, with this type of a correction A B C, and यहाँ से एक अच्छी रिवर्सल होती है ना, तो डेफिनेटली ये थोड़ा रिस्की है, बट इसे बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस. Because looking at this entire structure, if we get a ABC correction and then it starts to take off, it will go all the way, to 700 650 level. So this can turn out to be a big trade. So there are two conditions. Number one, it should come at 487. It should come in this format. आएगा तो ये ऐसे ही आएगा, बट इट शुड कम एट 487. तो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप है. सी आई एम विजुअलाइजिंग अ पोटेंशियल ट्रेड सेटअप, और वो जब मैनिफेस्ट होता है तभी मैं जो है उस पर रिकमेंड करता हूँ. सो बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच है स्टॉक्स के बारे में. दीपक नाइट्राइट. Deepak Nitrite. Okay, let me take this stock. Deepak Nitrite. Okay, doing nothing, just roaming around. See, ये stock तो वैसे अच्छा है. The last time मैंने इसमें एक चीज़ ये बताई थी कि I would like to see this stock coming down once, because that will be the last correction, and then it will rally very very hard. So लेट अस सी. लेट्स सी, अगर नीचे आया तो बेहतरीन बाइंग मिलेगी. इन केस इफ इट डजंट कम lower levels and if it chooses to give a breakout, we will try to capture that breakout. ठीक है. Overall I like this chart. I like this chart, but I would like to buy either a breakout or a correction. I don't want to bet here, because what if this is a channelized correction? ठीक है. So in that case, what will happen is you will end up getting trapped at a very poor level. This is already a sort of a head and shoulder, correct? So these are rationally why I am avoiding it as of now. ठीक है. So I hope you understand. Now suppose अगर आपने इसमें बाइंग वगैरह की है, तो आप इसमें 2150 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं. ठीक है. एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लाइक 2375, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर बहुत ही वंडरफुल प्रॉफिट जो है आपको मिलेंगे. ठीक है. सो दैट्स द अपडेट. आई डोंट नो ये किसकी क्वेरी थी, बट KNR कंस्ट्रक्शन. KNR कंस्ट्रक्शंस. लेट मी चेक दिस स्टॉक. ओके. सो देखो, वेरी सिंपल थिंग. कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सब में मैंने वार्निंग लास्ट मंथ ही दे दी थी. ठीक है. डेल्टा कॉप देख लो, DLF देख लो. सो इन सब स्टॉक्स में से प्लीज बी केयरफुल. KNR कंस्ट्रक्शन को मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ बॉस. ठीक है. आज से नहीं, 20 साल से. सो इनको जो है ना 260 पे स्टॉप लॉस लगा देना. दैट्स इट. ठीक है. होप फॉर द बेस्ट. इट्स जस्ट अ होप फॉर द बेस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेड. 200 डे मूविंग एवरेज पे है, सपोर्ट है. चल पड़ा तो मे 332 वगैरह मिल जाएगा. प्रॉफिट बुकिंग कर लेना. स्टॉप लॉस हिट तो एग्जिट कर देना. रियल एस्टेट थीम नहीं है अभी के लिए. रियल एस्टेट थीम हो चुका है. JSW स्टील एक्सप्लेन कर चुका हूं. थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, KNR पे बाइंग का पूछ रहे थे कि बाइंग का करना है, तो यार कोई ग्रेट ट्रेड नहीं है. ठीक है. सो मैं तो अवॉइड ही करूंगा. मतलब ट्राई करना है तो ठीक है, 20 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्राई कर लो. इट्स जस्ट लाइक दैट कि ट्राई योर बेस्ट. ठीक है. ठीक है, कभी कभार ट्राई कर लेना चाहिए, छोटे मोटे अगर स्टॉप लॉस है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. कुछ और क्वेरीज मुझे दिखाई दे रही हैं. BSC, लेट मी चेक दिस स्टॉक. BSC लिमिटेड.
ओके, BSC, सी BSC इज सिटिंग एट अ वेरी गुड लेवल, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अगर थोड़ा और नीचे आता 789 पे तो ज़्यादा बेहतर होता, ओके। बट what is the bad thing about this stock, the bad thing is this, you know the last rally with a high volume and giving up all that. So मैं BSC पे bearish हूँ. I see BSC coming all the way till 760 765, probably over there we can get some trade, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। Whenever there is a big white range candle, I don't like the chart, okay, because it's a sign of the bigger fish exiting the stock, and as you can see after this pump it is gradually being dumped, ठीक है। So मेरी तरफ से नहीं, कुछ नहीं है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, लेट मी चेक, या बजाज ऑटो। सो अगेन आई थिंक कल या परसों शायद मैंने ये एडवाइस दी थी कि इससे जो है प्रॉफिट बुक पहले करना, बाद में देखेंगे। सो अभी जो है ना, अभी अभी वेट करेंगे, ठीक है। लेट अस वेट, टिल मंडे। Now why I'm saying is because next couple of days many things can happen, so it's better to wait. Now what will be the obvious buying level for this stock? The obvious buying level is this, see, 3650, ठीक है। 3650, 3700, ये ऑब्वियस लेवल्स होंगे। तो यहाँ पे जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। जल्दी में कोई काम नहीं करना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो दैट्स अबाउट बजाज ऑटो। कुछ और क्वेरीज लेते हैं। इन्फो एज, इन्फो एज, नौकरी.com। सुबादीप घोष, करेक्ट करेक्ट। रिलायंस पे प्रॉफिट बुक हो चुका है 2800 पे, एज पर सिंह, क्या नहीं, हाँ आएगा, आने दो ना, आएगा आएगा, क्या टेंशन है। ओके, सो नौकरी.com, सी नौकरी.com पे अगेन वही व्यू है कि स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में हो चुका है, स्टॉक ने काफ़ी ब्रेकडाउन किया हुआ है। स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस आएगा लगभग 5100 तक, वहाँ पे निकल जाना है, दैट्स इट, ठीक है। वहाँ पे जो है निकल जाना है, ठीक है। TCS, डू यू थिंक, सी मैं कभी ऐसे नहीं सोचता कि यहाँ पे आएगा या वहाँ पे आएगा, ठीक है। वो जहाँ पे जाएगा उसके बाद क्या करना है वो मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है। सो आई डोंट एंटिसिपेट वेदर इट विल कम हियर और इट वोंट कम, what I will do there, or what we should look for over those levels, that is my specialty, ठीक है। सो TCS में अभी मैंने कल परसों सारा पूरा डायग्राम, आई थिंक कल भी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो उसको एक बार रेफर कीजिए। एवरी डे आई कांट कंज्यूम 10 minutes टू एक्सप्लेन द एंटायर कुंडली ऑफ अ स्टॉक। सो हर दिन मैं एटलीस्ट 2-4 स्टॉक्स को एक्सप्लेन करते हुए चलते जाता हूँ। तो जो लोग रोज लाइव सेशन देखते हैं, विद इन अ वीक यू विल हैव 10 to 12 केस स्टडीज, जिसपे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सारी एनालिसिस जो है हुई होती है, करेक्ट। पीडीलाइट फ्रेश बाय करने के लिए पूछ रहे हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट, ओके। सी पीडीलाइट में अभी कोई क्लियर ट्रेड नहीं है। पीडीलाइट जो है शूट कर सकता है 2522 तक, ठीक है, विच हैज़ बीन अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस। पीडीलाइट में जैसे मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि आई वुड लाइक टू सी पीडीलाइट एट अ लोअर लेवल्स, ठीक है। देखो, बाइंग सेलिंग बहुत टाइप की होती है। जैसे सपोज आप शॉर्ट टर्म में पूछ रहे हो, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में चलो ये जा सकता है 100 पॉइंट। सपोज आप एक बड़े ट्रेड के हिसाब से पूछ रहे हो, जैसे ये बड़े जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं, कि एक बार बाय करो एंड देन वेट फॉर 20-30% रैली। सो फॉर दैट टाइप ऑफ अ ट्रेड, ऑल दीज स्टॉक्स दे आर नॉट येट रेडी। दे विल डू 100 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। बट एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ये खुद एक बढ़िया ट्रेड सेटअप देते हैं। सो वी वेट फॉर दैट टाइम, और उन सिचुएशंस पे जब हम बाय करते हैं तो फिर हमें
ये बड़े वाली ट्रेड मिलते हैं। तो पीडी लाइट में इस समय वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। 2522 यस जा सकता है, लॉन्ग हो तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। अगली गिरावट अगर 2200 वगैरह तक दिखेगी, और पीडी लाइट में जैसे कि ये पेंडिंग गैप है 2250, तो यहीं पे मेरा नज़र है कि अगर 2250 मिलेगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे। ठीक है, टाटा कॉफ़ी देखो इन्वेस्टमेंट पिक है, ये हमेशा सजेस्टेड ही रहता है, 200 पे इसे उठा लेना चाहिए, 185 से 200 के रेंज में। ठीक है, सो अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी टाटा कॉफ़ी आपको इस लेवल पे दिखे तो बाय कर लेना। लास्ट टाइम भी आया था यहाँ पे। ठीक है, सो टाटा कॉफ़ी इज़ अ लॉन्ग टर्म बेट। 265 की टारगेट अभी भी ओपन है, चार्ट रेडी है, एंड if you look at this Tata Coffee chart and if you compare with the Adani Port chart, you will see lot of similarities. Except this gap, you will see lot of lot of similar structures. तो मैं आपके सामने ही दिखा देता हूँ अदानी पोर्ट्स का चार्ट एंड दिस टाटा कॉफी। ठीक है, याद रखना दोनों के चार्ट को। इफ यू सी, देखो, है ना, सेम चार्ट है ना। कितने लोगों को लगता है ये सेम चार्ट है टाटा कॉफी का और अभी जो अडानी पोर्ट मैंने दिखाया? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रैक्टल एनालिसिस। फ्रैक्टल एनालिसिस मतलब क्या मतलब होता है? फ्रैक्टल एनालिसिस समझना है तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ट्रेनिंग में आ जाओ। ठीक है, किसी को नहीं लगता है कि अदानी पोर्ट और टाटा कॉफी का चार्ट सेम है, तो नहीं लगता है तो ठीक है, बट ये है। ओके, लार्सन एंड टूब्रो, एल एन टी देखते हैं। लार्सन एंड टूब्रो इतनी बेहतरीन चीज मैंने आज आपको, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑन यूट्यूब, ऑन इंडियन यूट्यूब टुडे। करेक्ट, इतनी बेहतरीन चीज मैंने आपको दिखाई, पर आप लोगों को वैसी वीडियोस चाहिए। 5 लाख कमा लिया, गांव के लड़के ने 1000 करोड़ कमा लिए 100 रुपए से, ऑल दोस ब्लफ मास्टर, ब्लफ वाला वीडियो। एल तो एल ने आज एक अच्छा चीज किया है। ठीक है, लेट अस वेट फॉर कपल ऑफ डेज। आई थिंक एल विल नेगोशिएट समवेयर हियर एंड देन आई वुड लाइक टू बाय। रश नहीं करना है, देखो रश नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी जगह पे हैं कि अगर ये टूटना शुरू कर दी तो फिर गए, राइट। सो आई डोंट माइंड बाइंग एट अ हायर लेवल, बट आई डोंट वांट टू बाय एंड देन कीप माइंडिंग। ए डब्ल्यू एल में तो हो गया ना गेम में, 840 का अपना टारगेट था। अडानी सर को कल मैसेज कर, टारगेट आ चुका है। अडानी सर ने बोला नहीं भी 1200 का टारगेट है। ठीक है, आने दो, अभी नीचे नेक्स्ट राउंड वापस बाय करेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो था बॉस हमारा हो गया। हमने देखो लगभग ये जो है ना, आई थिंक 600 के यहाँ से जो है इसमें बाइंग कराई थी फॉर 840, दैट इज डन। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सेशन जो है समाप्त होने के कगार पे है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। लाइक डिसलाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे जो है जुड़ जाइए, एंड ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है तो भी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। संडे लास्ट डे। रोटो पंप्स में देखो 4-5 कैंडल में क्या बताऊं। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसी क्वेरी पूछते ही क्यों। रोटो पंप्स, अतुल अतुल जो है, लेट अस टेक अतुल लिमिटेड की चार्ट काफ़ी दिनों के बाद हम देख रहे हैं। सो अतुल जो है देखिए, इनमें हैवी सेलिंग हो चुकी है, 233 मूविंग एवरेज पे आ चुका है स्टॉक। और स्टॉक जो है ना, मुझे बस लास्ट एक सपोर्ट पे लग रहा है। ठीक है, ये स्टॉक इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि ये स्टॉक को जो है ना 8600 अगर दिख गया तो इसको उठा लेना। ठीक है, 8600 पे इसको उठा लेना, पर स्टॉप लॉस देखो थोड़ा सा वाइड है। स्टॉप लॉस जो है ना आपको लगभग 8100 रखना होगा, यानी ये जो डबल बॉटम स्ट्रक्चर है ना इसके नीचे। तो मुझे ये 8100 लग रहा है। आप भी चार्ट को ओपन करके एग्जैक्ट लेवल आप देख लेना। द आइडिया इज, व्हाट इज द आइडिया ओवर हियर? सी द आइडिया इज दैट इट इज अंडर गोइंग समथिंग, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। ठीक है, इट इज अंडर गोइंग समथिंग एंड देयर इज अ वेरी फेयर चांस दैट इट विल बाउंस अगेन। ठीक है, इस तरीके से। सो इसको प्ले किया जा सकता है, बट
एकदम नीचे, जैसे इसको यहीं पे प्ले करना चाहिए, 86, 84, 85 यहाँ पे, with a stop loss of 81, so that the structure remains valid and again it shoots up 10,250. वहाँ पे हम देखेंगे, अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फिर होल्ड करेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे जैसे लास्ट टाइम की तरह। तो एक अच्छी मूव हो जाएगी लगभग 1800 पॉइंट की, ठीक है। वेरी नाइस चार्ट, वेरी नाइस, स्टूडेंट्स इसे नोट कर सकते हैं, इट्स अ केस स्टडी, इट्स अ केस स्टडी, ओके। एंड इस चार्ट में जो भी इसका जॉकी है, जो भी इसका ऑपरेटर है, उसका एक रेकरिंग पैटर्न में देख रहा हूँ, वो मुझे दिख चुका है। आई विल एक्सप्लेन दिस चार्ट इन नेक्स्ट ट्रेनिंग, यू कैन आस्क मी इस चार्ट के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों आखिरी क्वेरी लेते हैं। इट्स बीन 1 आवर। मिंडा कॉर्प तो मैं ले चुका हूँ, अभी 3 दिन पहले मैंने लिया था मिंडा कॉर्पोरेशन। मिंडा कॉर्पोरेशन टीसीएस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट मी सी मिंडा कॉर्पोरेशन, तो मिंडा कॉर्पोरेशन हो चुका है, देखो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दो, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, रोटो पंप्स बीएससी में है क्या? रोटो पंप्स बीएससी में है, अच्छा। So why suddenly this love for NSC? Okay. Any which ways, ठीक है, any which ways it is trading at a new high, so profit booking ही करो इसमें, ठीक है। Pumps है, ठीक है, pumps है, थोड़ा ऑटो वाला वो सब, but in any case, you know, maybe 500 plus, but profit booking. The idea is exiting, profit booking. Yes, Nippon AMC NAM underscore India. I think yesterday this query was pending, correct? But still I can't see the symbol. Why? Nippon AMC. What is this symbol in trading view? I want that. I think it is this one. NAM underscore India. Correct. NAM underscore India. Okay, let me see. Okay. Uh, See, there's one good thing and one bad thing about this stock. The bad thing is this stock. I mean, it's trading below the 200-day moving average, and 1, 2, 3, third time it has been rejected. Okay, so that is something which is not good. क्योंकि 200 डे के नीचे जो है ना मोमेंटम नहीं होता, 200 के ऊपर मोमेंटम होता है, just like these rallies. So that is one part. The good part is that I foresee a bullish move in this stock based on this long-term trend line support over here. Okay, so basically it is at a good zone, I would say. So it will be better अगर ये हमें थोड़ा और नीचे मिले. Right now it's I think 320 or something. So give it some time. Give it some time. I think you will catch this stock. Okay, give it some time. What you can do is just buy few, I mean buy 50% here and just allow some time. Two things will happen: either this inverse head and shoulder pattern will form, and from this level it will start to give a breakout, then you can add on strength, or the second thing is it can come down again, thereby you know making this as a more credible bottom by retesting, and then once it starts to trade you can again add here or you can add here also. So go with 50% and allow some time. Let's see which permutation combination happens and then we can add, okay? So this way you won't miss on the trade, and yet you can position yourself. So that's the advice. Biocon. So Biocon last time, if I remember, I'd suggested to hold some long for some higher target, and then Biocon had moved up also. Yeah, 385. Perfect. Perfect. I think इसे हमने यहाँ कहीं लिया था 330 or something it was trading. So Biocon you can exit, you can book right now, and as I've explained, I think somebody sent the photo also in the group, that we will be buy on dip on Biocon, okay? So you can exit here 390 and then wait for this 347, again we will buy. So Biocon में हम buy on dip करते चलेंगे for next few months, few years also.
ठीक है. So ये चीज़ है. शिवा सीमेंट, one query coming up as a Shiva cement. Let me take, and we'll have to wind up. We have crossed 1 hour 5 minutes of live streaming. This is the last query. Oh, see again same चीज़. मैं क्यों कहता हूँ कि ट्रेनिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ. मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना, ये वाली जो बेसिक्स है, ठीक है, मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनको अब पता है ये सीक्रेट कि जब भी ऐसा कुछ हो तो क्या करना है. ठीक है. सो उनको पता है कि निकल जाना है. वाई? बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ अ प्रमोटर सेलिंग, द जॉकी इज सेलिंग. ओके. सो लर्न दीज थिंग्स. ये प्राइस एक्शन की बेसिक्स को थोड़ा अच्छे से समझिए. ओके. एनीवेज इसमें कोई ट्रेड नहीं है. अगर आप बाय साइड में है तो इसको एग्जिट वगैरह कर दीजिए. ठीक है. So that's all. Let us wind up. I think today's session is bit extended. So I hope आपको फायदा हुआ होगा, बेनिफिट हुआ होगा, वैल्यू एडिशन हुआ होगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. And lastly, if anybody is interested, you can join. Sunday is the last date to register for this training next weekend, May 7th and May 8th. ठीक है. कल फ्राइडे है, सो कल लाइव स्ट्रीम नहीं होगा. अब सीधे संडे को हम मिलेंगे दोस्तों. तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट. जय माता दी.